Hi everyone, welcome back. We will do important NEET PYQ series for NEET 2025. Let's start. So first question is, which of the following statement is incorrect? कौन सा statement इसमें से incorrect है? Viroids lack a protein coat. Viruses are obligate parasites. Infective constituent in viruses is the protein coat. जो ineffective constituent होता है वायरसेस में वो क्या होता है? वो बेसिकली डीएनए होता है या आरएनए होता है? Let's move another question. Purines are found both in DNA and RNA. Purines कौन से होते हैं? Purines है adenine and guanine. So answer is adenine and guanine, which is found in both DNA and RNA. Which of the following glucose transporter is insulin dependent? कौन सा इसमें से insulin dependent है? GLUT first, GLUT second, GLUT third, GLUT 4. GLUT 4 is a insulin dependent transporter. Next question, which one of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of enzymes? कौन सा इसमें से required है? BOD incubator, sludge digester, industrial oven, bioreactor. Bioreactor is essentially is important equipment for the production of microbes on a large scale. So it's bioreactor. Which of the following is true for golden rice? Golden rice is basically a vitamin A enriched rice. Vitamin A enriched rice. It is a vitamin A enriched rice with a gene from a daffodil. Gene कहाँ से लिया गया? Daffodil से. Next, which of the following is not a method of in situ conservation? इसमें से कौन सा in situ conservation का method नहीं है? Biosphere reserve, wildlife sanctuary, botanical garden और segregate group. Botanical garden is not a method of in situ excavation, it is a ex situ. Which of these following method is the most suitable for disposal of nuclear waste? इसमें से कौन सा suitable method है for the disposal of nuclear waste? Shoot the waste into space, bury the waste under the Antarctic ice cover, dump the waste within the rocks under deep ocean, bury the waste within the rocks deep below the earth's surface. So हमें न्यूक्लियर वेस्ट को बरी करना चाहिए बिलो द अर्थ सरफेस में. ओके. लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस किस लिए यूज होता है? फॉर द मेकिंग द कर्ड. लैक्टिक एसिड. सैक्रोमाइसिस सर्विस किसके लिए यूज होता है? ईस्ट ब्रेड बनाने के लिए, फॉर ब्रेड मेकिंग. एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए. एसिटोबैक्टर एसिटाई फॉर द एसिटिक एसिड. सो लैक्टोबैसिलस ए का सेकेंड. So answer B is correct. What map unit Sandy Morgan is adopted in the construction of genetic map? इसमें से कौन सा यूज करा गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हमने यूज किया है 1% का यूज किया है. अ यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर. कितनी परसेंट क्रॉसओवर होनी चाहिए? 1% क्रॉसओवर. सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिजीज. कौन सा इसमें से आईयूडी है जो हार्मोन रिलीजिंग है? जो हार्मोन रिलीजिंग है वो कौन सा है? वॉल्स, LNG-20, मल्टीनोड 375, प्रोजेस्टेड एंड LNG-20. These two are the hormone releasing IUDs. Which of the following can be used as a biocontrol agent in the treatment of plant disease? इसमें से कौन सा है जिसको हम यूज कर सकते हैं as a biocontrol agent for the treatment of plant disease? So as a trichoderma को हम यूज करते हैं बायोकंट्रोल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्लांट डिजीज. ट्राइकोडर्मा एक फंगस है. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स EST रेफर्स टू. EST जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होता है रेफर्स टू
genes which is expressed as a RNA. Colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial day of lactation, is very essential to impart immunity to the newborn infants IgA because it contains IgA immunoglobulin A. Select the incorrect statement. We have to choose incorrect statement. Inbreeding increase homozygosity. हाँ, inbreeding pure lines को increase करता है. Inbreeding is essential to evolve pure lines in any animal. Inbreeding selects harmful recessive genes that reduce fertility and productivity. This statement is absolutely false. Inbreeding helps in accumulation of superior genes and elimination of undesirable genes. Inbreeding help करता है accumulation of the superior genes और elimination करवाता है undesirable genes का. Select the correct sequence of the transport of sperm cells in male reproductive system. जो स्पर्म है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में. फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और रेटिटेस्टिस में पास होता है, फिर वहां से वासा फ्रेंशिया, फिर वहां से एपिडिडमिस, फिर वहां से वास डेफरेंस, फिर इजैकुलेटरी रफ, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा मेटस. So B is correct. Let's move next question. A gene locus has two alleles A and small a. If the frequency of the dominant allele is 0.4, जो frequency है dominant allele की वो कितनी है? 0.4 है. Okay. What will be the frequency of homozygous dominant? Frequency क्या होगी homozygous dominant की, homozygous dominant की, heterozygous की and homozygous recessive की. इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. सो तो ए कितना दिया हुआ है? 0.4. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे 0.4, तो हमारे पास किसकी रिसेसिव क्या जाएगी, वो कितनी आएगी? 0.6. सो फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq. फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous, frequency of heterozygous, frequency of homozygous dominant, frequency of homozygous recessive, frequency of heterozygous. So कितना है ये? 0.4. ये कितना है? 0.6. ये कितना होगा? 2. p कितना है? p is 0.4 and 0.6. so ये कितना आएगा? 0.16. ये कितना आएगा? 0.36. ये कितना आएगा? 0.48. सो होमोजाइगस की कितनी होगी? होमोजाइगस डोमिनेंट 0. ओके. हेट्रोजाइगस की कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? 0.48. आंसर सी इज करेक्ट. Match the following organism with their respective characteristic. Pila, Radula, Bombyx, Malpighian tubules, Pleurobacteria. कॉम्प्लेक्स स्टेनिया में होते हैं फ्लेम सेल्स. तो आंसर मैच कर दो. ए का क्या होगा? ए का होगा फोर्थ, सॉरी ए का होगा थर्ड एंड इसका होगा फोर्थ. बी का क्या होगा? बी का होगा फोर्थ. आंसर बी इज करेक्ट. The shorter arm and longer arms of the submetacentric chromosomes are referred as a. जो shorter and longer arms होते हैं submetacentric chromosomes, उसे क्या कहते हैं? P and Q arm. कौन सी आर्म होती है? P arm. This is and this is a Q arm. P arm and Q arm. What is the site of perception of the photoperiod necessary for induction of flowering in plants? क्या है? Leaves करती है perception of light. Which part of brain is responsible for thermoregulation? कौन सा part responsible है brain का thermoregulation के लिए? So which part is responsible? Hypothalamus is responsible for the thermoregulation. Which of the following pair of organelle does not contain DNA? इसमें से कौन सा जिसके पास DNA नहीं होता है? DNA कौन से organelle के पास? दो organelle के पास होता है. एक तो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया के पास और एक होता है क्लोरोप्लास्ट के पास.
तो इनमें से किसके पास नहीं है होगा? लाइसोसोम एंड वैक्यूल के पास नहीं होगा। What is a genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? Masculine development है, gynecomastia है एंड sterile भी है। टर्नर सिंड्रोम में तो masculine development नहीं आएगा बिकॉज इट्स एक्सो। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है XXY, इसमें फीमेल डेवलपमेंट भी होने लग जाता है और मैस्कुलाइन डेवलपमेंट भी होता है और स्टेराइल होता है, तो इट्स अ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसमें से कौन से पेयर है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए? हमारे पास एक तो चार गैसेस होती हैं, उसमें से जो मेन है, एक तो होती है उसमें से CO2 और एक होती है मीथेन, और इसके अलावा भी है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरीन। ये कुछ गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, लेकिन जो मेन दो गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ओके, which of the following protocols did aim for reducing emission of the chlorofluorocarbon into atmosphere? कौन सा इसमें प्रोटोकॉल है जो रिड्यूस, जिसका एम है क्या है, रिड्यूस करना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एटमोस्फेयर में? तो वो प्रोटोकॉल है मोनिट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है वो? मोनिट्रियल प्रोटोकॉल। In some plants, the female gamete develops into embryo without fertilization. This phenomena is known as, इस फिनोमेना को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? इसमें से कौन सी डिजीज है जो क्यूरेबल नहीं है? इट्स जेनाइटल हर्पीज। तीन डिजीज है, एक तो है HIV एंड हेपेटाइटिस B एंड हर्पीज। These three diseases are not completely curable. Next question, which of the following immune response is responsible for rejection of kidney graft? कौन सा इसमें से immune response responsible होगा rejection of the kidney graft के लिए? तो इसमें से कौन सा है? autoimmune response, humoral immune response, inflammatory immune response और cell mediated immune response? Cell mediated immunity is responsible for the rejection of the kidney graft. Which of the following factor is responsible for the formation of the concentrated urine? कौन सा इसमें से factors responsible है formation of the concentrated urine? Low level of antidiuretic hormone, maintaining hyperosmolarity towards the inner medullary interstitium in the kidney. जो मेंटेनेंस करते हैं हाइपरऑस्मोलरिटी की टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसी की वजह से जो हमारा यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बनता है, और जो भी एक्स्ट्रा वाटर का होता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? जो जेनेटिक कोड है वो नियरली क्या है, वो यूनिवर्सल है, इसी वजह से ह्यूमन इंसुलिन बना पाता है बैक्टीरिया बाय RDT टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। Which of the following statement is not correct? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? लाइसोसोम हैव न्यूमेरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। यस, दीस आर एक्टिव अंडर ओनली एसिडिक पीएच। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो, इट इज formed by the process of packaging in Golgi complex, not in endoplasmic reticulum. So D statement is incorrect. The concept of omnicellular e-cellular regarding cell division was first produced by the Rodolphe Virchow ने कब दिया था? 1855 में। Use of an artificial kidney hemodialysis may result in nitrogenous waste build up in the body. No, hemodialysis इसलिए करते हैं ताकि हम nitrogenous waste को body से excrete कर सके। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन हो जाता है कैल्शियम आयंस का फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट। और सेकंड क्या स्टेटमेंट है? रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिट? इसमें से कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है जो इनहेरिट होता है?
सो वो डिसऑर्डर है मैस्कुलर ड्राइस्ट्रोफी, जो क्या होता है, इनहेरिट होता है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल्स विद पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे तीन मतलब सेलेक्ट करो एनिमल जिसके पास ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हो। तो ये सब एनालिडा में भी होता है, ऑर्थोपोडा में भी है, एंड कॉर्डेटम, ये तीनों प्रॉपर्टीज इनके पास है। तो आंसर ए इज करेक्ट। The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes are explained by the जो frequency थी recombination between gene pairs on the same chromosome, जो distance कर रहे थे measure between the genes were explained by the किसने explain किया था, अल्फ्रेड स्टरवेंट ने explain किया था। Next question. Following statement describe the characteristic of the enzyme restriction and identify the incorrect statement. The enzyme cuts DNA molecule at identified position within the DNA. The enzyme binds at the specific sites and cuts only one of the two strand. तो बेसिकली ये वन ऑफ द टू स्ट्रैंड वाली बात नहीं होती कि दोनों स्ट्रैंड काटता है, स्पेसिफिक साइड में बाइंड करता है, बट कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड होगा। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल, डेलिकेसीज यस दीज आर एडिबल। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी अल्कलॉइड्स एंड एलसीडी, ये भी ठीक है। कॉर्निटा प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड एक्सपोज एंडोजेनसली, दिस इज ट्रू। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हैप्पी, ईस्ट के पास फिलामेंटस बॉडी नहीं है। प्लेसेंटेशन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑफ पेरिफेरल, जहाँ पे ऐसे डेवलप्ड होता है। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट में ऐसे डेवलप्ड हो रही है ओवरी। तो वो कौन सी प्लेसेंटेशन है, वो पेराइटल प्लेसेंटेशन है। Which of the following is the most important cause for the animals and plants being liable to extinction? कौन सा इसमें से मेन इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रहा है एनिमल्स एंड प्लांट्स का? इट्स अ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बिकॉज ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से। वेरिएशन कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय द ह्यूगो डी वायरस आर, जो वेरिएशंस होते हैं वो कॉज कौन करता है? वेरिएशंस आर कॉज बाय म्यूटेशन एज प्रपोज बाय द ह्यूगो डी वायरस आर। वो कैसे वेरिएशंस होते हैं? एक तो वो रैंडम होते हैं और डायरेक्शनल लेस होते हैं। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राई पाल्मिटिन इज 0.7। इन एंटीहिनम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर, रेड फ्लावर को किसके साथ क्रॉस किया है? रेड फ्लावर को क्रॉस किया है व्हाइट फ्लावर के साथ, क्रॉस किया है व्हाइट फ्लावर के साथ। ओके। इन F1 जनरेशन पिंक फ्लावर्स आर ऑब्टेन, F1 जनरेशन में कैसे फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं? पिंक फ्लावर्स ऑब्टेन होते हैं। पिंक फ्लावर्स आर ऑब्टेन व्हेन पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ, जब इन पिंक फ्लावर्स को हमने क्या किया? सेल्फ किया। जब पिंक फ्लावर्स वर सेल्फ एंड F2 जनरेशन शो व्हाइट रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यस ये फॉलो नहीं करता प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, क्योंकि जो जब हमने क्रॉसिंग करी रेड फ्लावर की व्हाइट फ्लावर से, इस जनरेशन में रेड फ्लावर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? पिंक फ्लावर आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, डोमिनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है का, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो तो नहीं करता। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस ट्रू। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, कैसे अप्लाई हो रहा है? लेट सपोज ये क्या हुआ, जब हमने रेड फ्लावर्स को ली उसकी क्रॉसिंग करवाई इससे व्हाइट फ्लावर से, दिस इज रेड दिस इज व्हाइट फ्लावर, जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो हमें क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला।
पिंक फ्लावर मिला। जब हमने इस पिंक फ्लावर की सेल्फिंग करवाई तो हमें क्या मिलता है रेशियो में, ये मिलता है। तो ये क्या आ रहा है, रेड फ्लावर आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, पिंक आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। और ये भी अगेन कैसा, पिंक है। तो इट मीन्स यहाँ पे तो कैरेक्टर्स जो है, फैक्टर्स वो सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो इसलिए तो अगर अगर ये सेग्रीगेट नहीं होते तो यहाँ पे सब में पिंक फ्लावर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो तुम्हें रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है, व्हाइट भी मिल रहा है। इट मीन्स तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो अप्लाई हो ही रहा है, इसलिए तो यहाँ पे कैरेक्टर्स अब सेग्रीगेट होके रेड कलर भी शो कर रहे हैं, पिंक कलर भी शो कर रहे हैं, एंड व्हाइट कलर भी शो कर रहे हैं। तो यस, और ये रेशियो गिरी, दिस इज ट्रू ऑल्सो। तो दिस स्टेटमेंट डी इज फॉल्स। This is today for all. Thank you.